Hello, today I'm gonna do regular expression matching. This is another one of those Google asked questions, and this one is pretty hard. And I just wanted to record myself doing it. I mean, I've already done it, but I wanted to record कि मैंने कैसे करा था, क्या solutions मिले थे मेरे को इसके because मुझसे हुआ नहीं था, and I just wanted to record an explanation for it so I don't forget it in the future or just for future reference only, because I don't want to watch 10 videos again or like 2 1 hour long videos again for this. So obviously this is a DP question, like this is one of those standard DP questions, and one of the method is recursive and another is just DP table, and this is one of those questions जहाँ पे recursion is seems somewhat a little harder to understand than just a simple DP table. So I'm gonna first do with recursion, then I will try the DP solution, but make sure that you actually kind of memorize the DP solution here, because it is quite intuitive and it is very, it helps understand DP a lot better than any other question I have ever faced. So uh, yeah, so the question basically states कि हमको दो ऐसे strings दे के रखे and I have, and this dot it matches any single character and this star it matches so this whatever is here, and अगर उसके आगे मेरे पास star है तो this star matches any number of occurrences of this character. तो अगर इसके पीछे x और एक star दिख के रखा है मेरे को, तो any number of x this star will be able to match. And another thing is that this star can also match no occurrence of this x. So if I just make this star disappear, make this entire part disappear, then that is also fine. So these were just one of my failed attempts, and after that I just stole some solutions from YouTube. So this is recursive one. This one I watched from Code Story with Mike, and pretty intuitive solution, pretty nice explanation. So if anyone wants to see that, they can go there, but this is just my own revision. So here ask for solution. So given a string a b b and given another pattern as dot star b, I want to try to match them. So let me just try drawing the recursion tree for this one. We will go from index to index, and for every index we will try to match this one with this one and this one with this one. But if I have this next one as a star, then I have to be a little curious. So I will use basically 2 pointers for this. I mean, initially what I did was I used 2 pointers, but obviously you can just initialize this p naught and check for p naught plus 1 is equals to star. But I did not do that initially. I just used 2 pointers because obviously whenever the star occurs, there will be some pointer before it, so like some character before it, so you don't have to worry about like p being empty here, वगैरह वगैरह. So with that boilerplate out of the way, let's start with this s and p matching. So s is a b b and dot star b. So I start matching with a b b and dot star p, and with this obviously in the first time only I encounter a star. So p0 p1 is star, so I encounter a star, and now I have to be careful. Whenever I see a star, I have two possibilities. I can either take that star or not take that star, right? So actually take and not take is not the correct word here. I like discovered this in the future, but take and not take might not be the best expression for it. It should be expand or not expand. So whenever I see a star, I have an option. Whenever I see a string with a star, I have an option to either expand that string, so I can take this like dot and dot star, or I can just make it disappear, so I can just have nothing there, right? So for this a b b, what I can do is a b b. I can either have what the hell was that noise? So I can have dot star b. So I expanded this, or I can have this a b b and nothing here and then a b, right? So I will be matching with this nothing obviously, so I will move this pointer here, but let's not go into that right now. I just wanted to make our options clear. So this take let me call it as expand, and don't take as not expand or disappear. So let me just get through this explanation a little quickly. So if I expand this, I will have myself a dot here, right? A dot will expand here and get added. So it will be like this, and dot ABB. Now obviously dot matches with every other character, so it matches. We can move our pointers forward, right? So match, move forward. Again we have dot star B and BB. So again we can do this, like add a dot here and then compare these two. So these two will match again obviously. So here dot B dot star BB match हो गया है. Now I have an option to not take, so I can do this dot star B and B. Now I have two options as dot star B and I have a simple B. So what I can do is I can do dot star B,
or I can do versus B, and I can do a dot, not dot, I can just make it disappear and I will have B and a B here. So fuck, I should have used a permanent pen. Dot star B and B. I can have a dot star B versus B, and I can have a make it disappear, so I can just remove this part entirely and I will have a B left. Let's put it outside the bracket and I will have a B. So matching these two, our strings get completed, and obviously these two match हो गया काम. But यहाँ पे क्या होगा देखो, आई विल हैव दिस डॉट स्टार बी, सो डॉट एंड बी विल मैच, राइट. ये दोनों तो मैच हो जाएंगे, बट मेरे पास अभी भी बचेगा डॉट स्टार बी, है ना, अभी भी बचेगा. और अगर मैं इसको डिसअपियर भी कर दूँ तो भी मेरे पास बचेगा भी स्ट्रिंगल बी. तो दिस इज़ नॉट द आइडियल वे, बिकॉज मेरी एक स्ट्रिंग बच रही है, राइट. तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज. सो इस केस में आई विल टेक द नॉट, टेक और द डिसअपियर वाला राउट, एंड देयर इज़ अ टोटल मैच. एंड इनमें से कोई सा भी पाथ अगर मेरे को ट्रू रिटर्न कर देता तो द आंसर विल बी ट्रू. ओके. तो एक और एग्जाम्पल है, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू गो थ्रू दिस वन. आई थिंक दिस एग्जाम्पल इटसेल्फ इज प्रीटी सॉलिड. सो नाउ हाउ द हेल डू आई एक्सप्रेस ऑल ऑफ दिस इन कोड, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, राइट. तो देखो, अगर मेरा एक्सपैंड हो रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एस पॉइंटर जो है, देखो एस पॉइंटर वहीं पे रह रहा है, मैं मेरा पी पॉइंटर को भी वहीं पे रख रहा हूँ, और फिर मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूँ. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस अ लिटिल बेटर नीचे. तो कहाँ गया एक्सपैंड में. देखो मैंने क्या करा है, मेरे सॉल्व फंक्शन में पहले तो तीन चीज़ें आएंगी, सॉल्व एस नॉट पी नॉट पी वन. आगे जाके कोड में से मैंने पी वन हटा दिया है, बट अभी के लिए यू कैन एज्यूम कि हाँ चलो ठीक है, पी वन इज़ जस्ट वन अहेड ऑफ पी नॉट. हाँ, तो एक्सपैंड में क्या करा है मैंने, सॉल्व एस नॉट प्लस वन पी नॉट, और डिसअपियर में मैंने क्या करा है, पी वन और पी नॉट को मैंने टू से मूव कर दिया है और एस नॉट को सेम जगह पे रखा है. ओके, मेक सेंस. तो solve s naught p naught, एक मिनट, I have written an actual, I have put the piece of code here. हाँ, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू मैच कि मेरे पहले कैरेक्टर मैच कर भी रहे हैं कि नहीं, तभी तो हम लोग एक्सपैंड और डिसअपियर में ध्यान देंगे, है ना. क्योंकि एस डॉट नहीं, मान लो मेरे पास है एस स्टार और एक्स स्टार, नॉट स्टार, एक्स, तो मैं पहले मैच करूँगा ना ऑब्वियसली कि मेरा पीछे वाला कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं, तभी तो मैं एक्सपेंशन पे ध्यान दूंगा, है ना. तो दिस इज जस्ट दैट वेरिएबल, टू फर्स्ट कैरेक्टर्स मैच, एंड आई विल चेक के ओके मेरे फर्स्ट कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं या नहीं. इफ़ दे मैच, टू मैच दैम ऑब्वियसली आई कैन डू एस इज इक्वल टू एस नॉट और पी नॉट इक्वल टू डॉट, ठीक है. इफ़ पी नॉट प्लस वन इज लेस देन पी, ठीक है. एक्सपैंड करने के लिए आई हैव डन सॉल्व एस नॉट प्लस वन एंड पी नॉट, तो सॉल्व एस नॉट प्लस वन पी नॉट, मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक्सपैंड, ओके, ये वाला था मेरा एक्सपैंड, है ना. मैंने एस नॉट प्लस वन करा है, तो देखो ए से मैं बी पे पहुंच गया, है ना, क्योंकि मैंने सॉल्व करते मतलब एक्सपैंड करते मैंने मान ही लिया कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पहले चेक करा था डू फर्स्ट कैरेक्टर्स मैच, है ना. तो मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है, मेरी ये चीज़ तो सुलट गई है कि ये दोनों मैच करती होंगे, तभी मैं एक्सपैंड करने जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. तो अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं अपने सॉल्व फंक्शन को एटलीस्ट मेरी दूसरी स्ट्रिंग में तो आगे लेके जाना ही चाहूँगा, है ना. तो मेरा ये एस नॉट प्लस वन तो आ ही जाएगा. उसके बाद मेरा पी नॉट मेरे को क्या करना है, मेरे को सेम जगह पे रखना है ना. तो मैंने पी नॉट को पी नॉट पे ही रखा. क्यों रखा, क्योंकि मैंने अभी तक ना इसको देखो डॉट स्टार को आगे नहीं बढ़ाया है. मैं अभी भी, मैं इसको अगली इटरेशन में भी मैं इसको डॉट स्टार से ही कंपेयर करना चाहूँगा. दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट इट एज डॉट स्टार ओनली. दैट इज़ वाई आई हैव नॉट मूव्ड माई पी नॉट पॉइंटर. ओके, एंड कहाँ गया ये रहा. ओके, अगर मैंने अपना क्या बोलते हैं डिसअपियर करा है तो ऑब्वियसली मैं पी नॉट प्लस टू पे जाऊँगा. दिस इज़ प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं अगर डिसअपियर कर रहा हूँ तो मेरा जो एस स्ट्रिंग है, मतलब वो तो मैच नहीं हुआ है ना, तो मैं एस स्ट्रिंग में तो सेम पे ही रहूँगा. बट मेरे को अपने पी स्ट्रिंग में मेरे को दो कैरेक्टर आगे जाना है. क्यों, क्योंकि मेरा पी जो है, पी मेरे कैरेक्टर पे था, पी वन मेरा एक आगे वाले स्टार पे था, तो मेरे को इधर प्लस वन प्लस टू करके मेरे को इधर आगे वाले कैरेक्टर पे जाना है. एंड आई विल ट्राई टू मैच दैट विद माई एस का कैरेक्टर, है ना. एस का वही वाला कैरेक्टर जो कि मैं अभी चेक करता हूँ, बिकॉज अभी ये मैंने मतलब अभी ये मैच नहीं हुआ है. ओके, सो दिस इज़ द ओनली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. इसके बाद का तो ईजी सा है कि अगर मैच कर रहा है तो चलो ठीक है, दोनों को आगे बढ़ा दो वगैरह वगैरह. नाउ लेट्स कम टू द मोर इंटरेस्टिंग सोल्यूशन विच इज़ द डीपी सोल्यूशन, है ना. तो आई थिंक वाई दिस सोल्यूशन डिमांड्स अ डीपी, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस. यू विल बी मैचिंग समथिंग लाइक दिस. पहले मैं इधर से इतना मैच करूँगा, उसके बाद मैं इधर से इतना मैच करूँगा, उसके बाद मैं इधर से इतना मैच करूँगा. दिस इज़ अ सोल्यूशन दैट बेसिकली स्क्रीम्स डीपी ऑन इट्स ओन, है ना. तो मैंने कल वाले वीडियो में आई थिंक आई एक्सप्लेन कि ओके वाई
all of this is being used. But let me be clear, that solution had its flaws. Like it was not entirely correct, and I think once you watch this video, that video you will know why it wasn't correct. So this is just filling up that DP table, although with the wrong approach, the solution still turned out to be right. And I just wanted to elaborate a little more on what that expand, disappear entail in this DP table. तो I will go through this example. तो देखो, अगर मेरा पहले तो मैंने DP टेबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, स्टेप 1 इज इनिशियलाइज, है ना. दूसरा इज जस्ट सेटिंग अप दीज रोज एंड दीज कॉलम्स, दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना. तो फर्स्ट रो का तो काफ़ी आसान है, ओनली दिस मैच, बाकी सब यू कैन जस्ट कीप फॉल्स. This means empty character, this means empty character. So an empty string matches itself, but an empty string does not match anything else, है ना. Now for this one, I think I remember the rule. If I encounter a star, I just go दो डब्बा पीछे and check out के if that is false or not. If I want to know the reason of this in the future, then I think I've gone a little stupider, but I don't really want to explain it. बस दो मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे. Although वट एवर, नेक्स्ट मूव ऑन. MIS, हाँ चलो ठीक है, मेन जिस्ट पर आते हैं ना. चलो मैंने ये दोनों भर लिया, अब मेरे को मेन चीज़ पे आने दो, ये वाली. तो वट एम आई डूइंग हेयर इज़ दैट कि मैंने M को M से कंपेयर करा, ठीक है. T है, अगर हाँ ये दोनों कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो मैं चेक करना चाहूँगा ना कि मेरी अभी तक पीछे की स्ट्रिंग मैच हुई भी है कि नहीं हुई है, तभी तो मैं बोलूँगा कि ये इधर से लेके इधर तक का मैच हो रहा है ना. तो डोंट थिंक ऑफ दिस एज दैट ये दोनों कैरेक्टर केवल मैच कर रहे हैं. थिंक ऑफ दिस एज कि ये पूरी स्ट्रिंग मैच कर रही है ये वाली पूरी स्ट्रिंग से, है ना. तभी मैं इधर पीछे का भी चेक कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मेरे ये दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो आई हैव टू चेक कि मेरी पीछे की अभी तक की पूरी स्ट्रिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तभी तो ये वाले कैरेक्टर मैच करने का कोई फ़ायदा भी होगा मेरे पास. अदरवाइज इन दोनों को मैच होने तो भाड़ में जाए. अगर पीछे का कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है तो आई विल जस्ट कीप देम एज फॉल्स, है ना. तो दैट इज़ वाई आई एम चेकिंग द प्रीवियस शिट. तो okay, M matches, I matches, S matches, बाकी you can just keep all of them as false. It does not really matter. I mean it does matter, but I'm not gonna go why all of these are false. I want to get to here as fast as possible. तो T and S matches S, ठीक है. थोड़ा सा और आगे जाते हैं. S, ये वाला S भी तो मैच कर रहा है, बट क्योंकि मेरी पीछे की अभी तक की स्ट्रिंग मैच नहीं हुई है यहाँ पे, इसलिए दैट इज़ वाई दिस इज़ फॉल्स, ठीक है. नाउ when I encounter a star, this was the problem yesterday. तो what I was doing was that I was matching this and then मैं इन तीनों में से कोई सा भी अगर ट्रू हो रहा था तो मैं उसको ट्रू उठा ले रहा था, है ना. तो कल वाले लाइक इसमें ये वर्क कर गया था, बट टुडे दिस स्पेसिफिक टेस्ट केस ऑन लीड कोड फेल्ड व्हेन आई ट्राई टू सबमिट इट. तो I did not submit the problem yesterday, so I wanted to go through this test case and figure out what was wrong. So here's the thing. Now I want to explain what this actually means. तो आई विल टेक दिस एग्जाम्पल. MIS कहाँ पे थे हम लोग, MIS स्टार, और मैं इसको मैच कराऊंगा MIS से, MISS से और MISSI से. एंड इन ट्राइंग टू डू सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन के what these movements in the DP table mean. So I will just copy this entire page and I will just copy this entire page from here to here and we will move आगे. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है. मेरे को MIS स्टार को मैच कराना है MIS से. तो देखो MIS स्टार का मतलब क्या होता है. MIS स्टार कैन ईदर डिसअपियर और इट कैन एक्सपैंड, है ना. तो देखो MIS स्टार अगर ये डिसअपियर हो जाए तो मेरे पास बचेगा MI, और MIS स्टार अगर एक्सपैंड हो जाए तो मेरे पास बचेगा MISS स्टार वर्सेस, और इधर मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ उनको, MIS से, और इधर मेरे पास वर्सेस बचेगा MIS से. अब देखो MI वर्सेस MIS, ये है मेरा डिसअपियर, है ना. I have to ask myself, have I solved this problem somewhere before? MI versus MIS. No wait. MI versus MIS. Have I solved this problem somewhere before? Haven't I? This is F. This is just I minus 2. So this is just I minus 2 वाला column, है ना. Now I have to again ask myself,
चलो भाई, मैंने क्या यहाँ पे कहीं पे कुछ सॉल्व करके रखा है, यहाँ पे छोड़ो. नाउ आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि चलो ठीक है, एम आई एस, वॉट इफ इट एक्सपैंडेड इनटू ओनली वन स्टार, तो एम आई एस एस स्टार एंड तो हाँ दिस इज दैट वन ओनली. तो एम आई एस एस स्टार एंड एम आई एस. If this expands into 1, then have I compared MIS versus MIS? MIS versus MIS. I have T, hence इसका आंसर भी T है. और इधर वाले में डिसअपियर, मतलब देखो इधर ट्रू है तो ये डिसअपियर वाला है, ये वाले में फॉल्स है, तो एम आई एस स्टार. मैं एम आई से कंपेयर कर रहा था, ऑल दो मैंने गलती से ज़रा एम आई एस भी कर दिया है. तो दिस शुड बी एम आई एस. मैंने एम आई एस से स्टार्ट करा था ना, हाँ एम आई एस से स्टार्ट करा था. चलो ठीक है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. तो ये रहा मेरा एम आई एस और ये रहा मेरा एम आई एस स्टार, एम आई एस स्टार. और इसका अगर ओनली सिंगल एक्सपेंशन लूँगा तो ये एम आई एस आएगा, इधर भी एम आई एस आएगा, इधर पे ट्रू आएगा. तो इन दोनों को कंपेयर करके मेरा आंसर इधर ट्रू आ गया है ना. नाउ अगेन लेट्स कंपेयर एम आई एस स्टार विद एम आई एस एस स्टार, एम आई एस स्टार विद एम आई एस एस स्टार. अगेन एम आई नॉट सॉरी एम आई एस एस ओनली. तो एम आई एस it can disappear, so it will become one MIS, not MI versus MISS. Second, it can only expand once, so MIS S. और third, I can keep that expansion, तो MIS S star versus MISS. तो देखो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको एक और बार एक्सपैंड कर दिया है ना. हाँ, तो आई विल यूज़ दिस एस है ना, बिकॉज मैं एक्सपैंड ओनली तभी कर पाऊँगा जब मेरे ये दोनों लास्ट के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं. तो दैट जस्ट मीन्स कि मैंने इस एक्सपेंशन का कैरेक्टर यूज़ कर लिया. इसको ऊपर मैंने और अच्छे से लिखा भी है कहीं पे, कहाँ गया स्टार. आई यूज्ड एन एस फ्रॉम दिस एक्सपेंशन. तो एम आई एस एस आई एस और एस, तो मैंने इस एक्सपेंशन में से एक एस उठा लिया. तो मेरे पास क्या बचा, एम आई एस एस आई और एम आई एस स्टार. मैंने इसको उठा लिया, मेरे पास क्या बचा, एम आई एस स्टार वर्सेस एम आई एस. क्या मैंने ये प्रॉब्लम कहीं पे सॉल्व करके रखी है, एम आई एस स्टार वर्सेस एम आई एस, ये रही है ना. तो मतलब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये दो सेल तो चेक करे ही करे, बट मैंने ये वाला भी करा. ठीक है, तो दिस वॉज दैट मीनिंग कि मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ और मैं कैसे जा रहा हूँ. तो इसके लिए कुछ नहीं, बस कोड में कोई चीज़ ऐड करनी है कि इफ़ स्टार के पहले वाला इज़ इक्वल टू मी, देन आई कैन चेक के डी पी ऑफ वगैरह वगैरह इक्वल्स टू डी पी ऑफ एक रो पीछे जाओ, एक कॉलम पीछे जाओ और रो को सेम रखो, तो -1 जो भी है. ठीक है, अब मैं जाके कोड पे सीधा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं थक चुका हूँ इसको एक्सप्लेन कर करके. हाँ, कल से लगाऊँ मैं इसमें. तो डी पी इनिशियलाइज़ कर दिया. प्रिंट डी पी इज जस्ट अ फंक्शन, हेल्पर फंक्शन है मेरे लिए, मैं प्रिंट करता रहता हूँ चीज़ें. डी पी ऑफ 0 0 ट्रू. ठीक है, ये फर्स्ट क्या बोलते हैं, कॉलम को सेट करने के लिए फर्स्ट रो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी बिकॉज डी पी में ये वाली ट्रू है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली फॉल्स हैं बिकॉज मैंने इनिशियलाइज ऐसे करके रखा है. इधर वो पहले कॉलम को सेट करके रखा और डी पी इंडेक्स का ध्यान रखना, डी पी इंडेक्स is just one greater than whatever index you are playing with in the string right now. तो 1 plus star index है ना. फॉर पोसो वगैरह पी नॉट एस नॉट है ये. तो ये सब छोड़ो, आई एंड जे रेफर टू करस्पॉन्डिंग डी पी इंडाइसेस इन स्ट्रिंग. ठीक है, एफ पी एफ जे डिसअपियर और एक्सपैंड वंस. ठीक है, तो ये रहा मेरा मेन जस्ट ऑफ कोड, डी पी ऑफ पी नॉट और एस नॉट. मेरा टैबलेट ख़राब हो रहा है क्या, तो डी पी ऑफ पी नॉट एस नॉट -2 और डी पी नॉट -1 एस नॉट. ये है मेरा एक्सपैंड वंस का कोड, एक्सपैंड वंस. और ये मेरा टोटली डिसअपियर वाला है ना. अब अगर मेरे पहले कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, ये है वो पहले कैरेक्टर मैच होने की कंडीशन, तो आई विल ऑल्सो चेक मेरा एक पीछे वाले कॉलम में क्या हो रहा है ना. दैट जस्ट मीन्स कि मैंने वो एक क्या बोलते हैं स्टार वाली चीज़ कंज्यूम कर लिया, स्टार एस और एम आई
एस स्टार और एम आई एस एस। इसका ये मतलब है कि मैंने इसको ऐसे एक्सपैंड कर दिया, एम आई एस एस स्टार और एम आई एस, तो मैंने इन दोनों एस को कंज्यूम कर लिया, मेरे पास बचा एम आई एस स्टार और एम आई, समझे? इसलिए मैं पीछे वाले कॉलम में जा रहा हूँ एक बार चेक करने के लिए, अदरवाइज दिस इज जस्ट सिंपल कंपैरिजन वगैरह वगैरह। अब लेट मी क्लीन दिस अप, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द कोड एंड आई थिंक आई शुड बी एबल टू गेट दिस प्रॉब्लम नाउ इन द फ्यूचर, आई होप सो। बाकी इधर तक का तो मैंने खुद ही बना लिया है, इतना आपसे मैंने मतलब कल मैंने सॉल्यूशन ऑब्वियसली देखा था, बट आज मैंने खुद से ही बना लिया था, तो गुड। जस्ट होपफुली this stays in my mind because this is one of the better DP problems. This really explain why DP is used or how it is used. It is just movement on a grid. So that was it. Bye bye.